आज आप लोग को बोलना है, हाँ? आज मैं सुनूंगा, हाँ? आप लोग बोलिए। So, do well, farewell, right? Although parting is difficult, but parting is also promise to meet again, yeah? It involves a good promise. Nothing special to tell. I tried my best to inculcate in you not only sociological sense but also practical knowledge, yes na, and practical relevance of sociology, right? And hopefully knowledge, wisdom that you carry from this class here onward will help you not only getting good rank in civil services but also dealing with your day-to-day life problems, right? And always try to grab opportunity. Opportunity, I will not say like motivational gurus ki opportunity to be successful, right? Opportunity to live a good life, right? Opportunity to be a sincere and hardworking student, civil service aspirant. Opportunity to be a good person for your family, your kinship, good person, good personality in your marital life, right? Good personality at your workplace, right? Because you cannot be a good personality in a day or two. It's a continuous process, right? And as I said in very first class, this journey is related to personality development. Yes, now over the period of time, you must realize that you have something better than, your personality has something better than you had in past. Yes, na? Before starting this preparation, before you started this preparation, isn't it? And that is good measurement of what you have achieved so far, right? Your outlook, your ways to look at reality, your understanding of reality, more systematic, more scientific, yes na, more factually correct, है ना? In world of misinformation, you are an extra challenge, to be factually correct. जहाँ इतना misinformation, जिसके लिए AI tools are being employed by, these social media and all, isn't it? Meta and many others, right? To check fact, है ना? So आपको इस over informed and misinformed world में informed, in fact well informed, logically exposed personality बनना है ना? You have to have balanced outlook, right? So hopefully we'll all do good. And although you have organized this farewell, but I will expect you to come time and again until you qualify this exam, है ना? You are recommended by UPSC. I will always welcome. और जब मैं टेक्स्ट करूँ तो जवाब देना. जब भी फ्री टाइम में होता हूँ तो आई कीप टेक्सटिंग, कीप मैसेजिंग, राइट? बहुत सारे बच्चे रिवर्ट करते हैं, बट बहुत सारे बच्चे आई डोंट नो रिवर्ट नहीं करते कहीं. सो कई बातें मैंने बताई आपको कोर्स के बीच में. एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगता है कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, है ना? Right, don't get frustrated, yes na, don't get tensed, right? Whenever some problems, and problems are not that big actually, suppose performance below expectation in your mock test for the time being, yes na, problematize you, yes na, for the time being, you should better respond by more sincere and hard work. You should try to compensate low score in mock test with sincere and hard work. Yes na? Repetitive revisions, although repetitive revision is very boring and frustrating, लेकिन घबराना नहीं है उससे, है ना? आपको रिस्पॉन्ड करना है. Always you have to have a positive response. Yes ना? And क्या कर ही सकते हैं? We can do
good work, isn't it, in response? Yes, na? Because this is a process, isn't it? Continuous effort you have to make. ऐसा कोई solution भी नहीं होगा, in a day or two you will get solution. Yes, na? Right. So this is, now the stage is all yours. Last line. Try to spend time with your problems. Yes, na? अपने problems के साथ time spend करिए. Try to understand, isn't it? In this journey, never expect things to come ready-made before you. Yes, na? I tried my best, so the other teachers also, isn't it? Now here onward, your responsibility, right, to optimize your knowledge matrix, isn't it? And make your wisdom the most trusted partner in this preparation. Your own wisdom, the most trusted partner in this preparation, because that wisdom will bring solutions for you in examination hall. Yes, na? Right. मेरा तो blessings ही रहेगा examination hall में. बाकी your wisdom, isn't it? बस हो जाएगा. It's not that difficult. Yes, ना? कई बार आपको लगता होगा कि सर ऐसा बोलते हैं कि इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, हो जाएगा, तो सर का क्यों नहीं हुआ? राइट? तो ऑल्दो आई नेवर डिस्कस माई प्रॉब्लम्स एट पब्लिक प्लेटफॉर्म्स. कई बार पहले भी बच्चों ने पूछा, मैं मना करता हूँ. एंड प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज पर्सनल एंड सक्सेस इज पब्लिक. यस ना? जो भी आप अचीव करते हैं वो पब्लिक में है. प्रॉब्लम्स को थोड़ा प्राइवेट रखिए, ठीक है? सोशल मीडिया सेंसेशंस के लिए लोग अपना प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन हर आदमी का अपना ओरिएंटेशन होता है. लेकिन कुछ रहा ऐसा कि आई कुड नॉट डेडिकेट मच टाइम, isn't it? And I could not continuously make efforts, isn't it? तो इसलिए otherwise what I did, right, 3.5 months prelims and 4 months mains, right? Beyond that all fate, है ना? And time could not favor. तो इसलिए मुझे लगता है कि it's not that difficult, है ना? अगर आप calculated effort, if you make calculated effort, as I suggested earlier also, never think in absolute terms, calculate, isn't it, the cutoff, है ना? 10, 15, 20 marks above the cutoff, isn't it? Right, beyond that, बस तो हो जाता है. If you make calculated effort, हो जाता है. It's not that difficult. If you are committed to syllabus, if you meaningfully oriented towards syllabus, if you are just doing justice with syllabus, हो जाता है. फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि syllabus is God. Different topics like different avatars of God, right? You have to worship the syllabus till you complete this process, है ना? बाकी सब पृष्ठ हैं, है ना? बाकी लोग तो कमिटेड रहिए, है ना, फॉर द टाइम बीइंग. एंड एज आई सेड कि ट्रस्ट ऑन योर विजडम. एंड इस केओस में, इस क्राउड में एक विल्फ्रेडो पैरेटो का रूल है, 80-20, 20-80 रूल. बहुत लोग जानते होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह, है ना? तो हालांकि पैरेटो है सोशियोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट भी उसको रेफर करते, राइट? अब रूल तो कुछ और कहता है, बट मेरा मानना है कि इफ़ यू आर able to internalize 20% of the topic, you will elaborate it to 80%. 100% is never required, है ना? 20% here in your wisdom, yes na? Your wisdom will help you to elaborate to get 80% out of that 20. Yes na? Right? हो जाता है, right? या पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या ऑप्टिमाइजेशन जो टर्म मैं यूज करता हूँ, डैट ऑल्सो आई हैव बोरोड फ्रॉम पैरेटो ओनली, राइट? ऑप्टिमाइज योर सेल्फ, ऑप्टिमाइज योर नॉलेज, एंड दैट इज पॉसिबल. वो पॉसिबल है ना? राइट? ओके, साईं ब्लेस यू ऑल, गुड लक.
Sir, your lesson will forever guide us. The way you manage the class and respect our time are commendable. No doubt, sir, you have been a guiding star, illuminating out path to success. So thank you so much, sir. Please have a huge round of applause, sir. Thank you so much, sir, for your kind words. We are honored and privileged to have you as our mentor in this journey. Not only your words have inspired many students, but sir, you have made many students' dream possible also. And sir, we salute your dedication as you have many roles to play, like teacher, professor, guide, mentor, Husband, son, brother, father. philosopher, philanthropist, nuclear physicist, neurosurgeon, astrologist, mathematician, Superman, Batman. Okay. हम उस एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं जहाँ रोज ही कंपटीशन बढ़ता है, जहाँ रोज रोज टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर आता है, जहाँ आम आदमी भी करने का हौसला रखता है। इस हाल में भी, उस दौर में भी हर दिल में आईएएस बनने का सपना रहता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ कहने से पहले सर, मेरी फैमिली ने आपके लिए, मुझसे ज़्यादा तो मेरी फैमिली आपकी फ़ैन है सर। उन्होंने आपके लिए कुछ एक छोटा सा तोहफा कश्मीर से भेजा है, तो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो। गाइस, ये शॉल निफत स्पेशली कश्मीर से लेके आई है। Respected Vikas sir, dear management of Triumph IAS and my dear friends, a very good evening to all of you. My name is Nifat Yaqub. I am from Kashmir and it's my gratitude for preparing civil services under the guidance and mentorship of Vikas Ranjan sir. सर, आपके बारे में क्या कहूँ मैं, लफ्ज़ कम पड़ जाएंगे। सर, आप तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, आपकी शख्सियत ही काफ़ी है। सर, you made sociology very easy and precise for us. Your teaching aptitude is simple and exam oriented. Under your guidance, many students have achieved success in civil services. I also, being your student, will make you proud, inshallah. सर, मैंने आज तक कोई भी ऐसे टीचर नहीं देखे जो अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सर, चाहे वो एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो या फिर इंटेलिजेंट हो, आपकी नज़र में सब एक समान है। सर, मुझे याद है जब मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गई थी, और जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के पास रोते रोते जाता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे साथ वो मुझे समझेंगे, मेरी वीकनेसेस का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बिल्कुल उसी मान के साथ मैं आपके पास रोते रोते अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आई, आपके साथ अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस शेयर करी, और जिस मान से, जिस तरीके से आपने मुझे समझा, मुझे समझाया, मेरा हौसला बढ़ाया, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस। आप सबके लिए कुछ लाइंस डेडिकेट करना चाहूँगी सर, अगर आपकी इजाज़त हो तो। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखने हैं कदम तो आगे रख, अगर रखने हैं कदम तो आगे रख, पीछा खींचने के लिए लोग हैं ना। सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, सपने देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। Thank you everyone for listening me. Wish you all the best. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. May all your dreams come true. And sir also bless you. And और जाते जाते कुछ कहूँगी, ओ मट्टी के परिंदे पंख अपने खोल दे, परवाज तेरी क्या है तू सबको बोल दे, आकाश से भी ऊपर आकाश है कहीं, चल तू उड़ान भर ले, ना डर को बोल दे। थैंक यू। वाह निफत, वाह, तालियां तालियां। गुड इवनिंग एवरीवन। खामोशी गलत फैसला करा देती है, बोलिए वरना मसला हो जाएगा। Why I said these lines or what is the objective behind them? Before coming to the subjectivity of this line, I would like to introduce myself in front of you all. My name is Ritesh and I am standing here because of my aim of cracking UPSC with a easy and comfortable subject like sociology. Comfortable for me because it's easy to, like, I have my background in commerce and commerce has this barrier of practicality. The sociology doesn't involve it. So this brought me here in Triumph IAS under the command of our beloved Vikas Ranjan sir. For knowing nothing about sociology, I was worried initially, but gradually sir's way of teaching boosted my confidence in this subject, that all the worries vanished with passage of time. Also, I would like to thank you sir for your support, guidance, walking this journey with all of us.
Now it's a feeling that 6 months have gone at a very fast rate. Throughout the journey, you have emphasized on viewing the world with sociological lenses. और अब हम सब ने सोशोलॉजिकल लेंसेज पहन लिए हैं. As we have done our lectures, I would like to quote these Hindi rhythmic lines of Vikas Tiwari ji. I heard them few days back, dedicated to you, sir. सफ़ेद पत्थर से काले बोर्ड पे अक्षर बनाते थे, सफ़ेद पत्थर से काले बोर्ड पे अक्षर बनाते थे, ताकि समझ में आ जाए इसलिए कविता गा के सुनाते थे. खुद ज़मीन पे रह के हमें कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ाने वाले, खुद ज़मीन पे रह के हमें कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ाने वाले, शुक्रिया सिलेबस के बहाने हमें ज़िंदगी पढ़ाने वाले. एंड गुड इवनिंग एवरीवन. शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है. गुमनामी के अंधेरे में पहचान बना दिया, दुनिया के गम ने मुझे अनजान बना दिया. उनकी कृपा ऐसी हुई जो सोशोलॉजिकल लेंस से देखने वाला इंसान बना दिया. थैंक यू. अ वेरी वार्म हेलो एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन. सो कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे मुझे, पर इसी बैच से हूँ मैं. हेलो. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. सर ये कोट रियली आज तक मैं जितने भी टीचर्स को मैंने देखा है, मैं पढ़ी हूँ, बट सर ये कोट सच में सिर्फ आपको ही सूट करता है. मतलब दिस इज़ रियली फॉर यू. आई रियली फील वेरी ऑनर्ड टू लर्न फ्रॉम यू. एंड सर आपकी जो टीचिंग्स हैं यहाँ पे हर एक इंसान जो बैठा है, आई कैन मेक श्योर दैट हर कोई आपका फ़ैन है. यहाँ पे जो भी है सर, हर कोई आपका फ़ैन है. और सर एक टीचर और गुरु के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने आपसे मिलकर ही सीखा है. सर मतलब एक कॉमन नोशन है कि लोग कहते हैं कि हर वक्त कोई इंसान एक ही मूड में नहीं हो सकता, लेकिन सर मैं उनको बताना चाहूँगी कि हर वक्त एक इंसान एक ही मूड में हो सकता है, और वो है हैप्पी, चीयरफुल और जॉयस. किसी ने भी सर इस मूड के सिवाय आपको किसी दूसरे मूड में नहीं देखा होगा. अग्री ना? तो सर आपके लिए कुछ लाइन है. कोरे कागज़ को अखबार बनाता है, गुरु को जिंदगी का हर हिसाब आता है, रंग बिरंगे फूलों से वो संसार को एक सुंदर बाग बनाता है, वही तो है जो तारों को भी रोशनी देकर खुद सूरज बनकर जगमगाता है. नटखट शैतान बच्चों की लाख शैतानियां सहता है, फिर भी गुरु धैर्यवान रहता है. ज्ञान की एक एक बूंद से सींचता है वो अपनी फसल, ज्ञान की एक एक बूंद से सींचता है वो अपनी फसल, तभी तो शिष्य कभी अर्जुन और कभी राम बनकर परचम लहराता है. सेकेंडली अगेन द वेरी मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट पीपल, माई बैचमेट्स जो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए कि मतलब सब अपने अपनी जर्नी में लगे हुए हैं, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स, कभी डीमोटिवेशन, कभी कुछ, सबका कॉमन है. तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता है, मैं वो बोलना चाहूँगी. प्लीज़ ज्वाइन मी टुगेदर. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है. आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है. मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना विश्वास इसी हैरानी में. मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो. जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम. कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी. एंड एट वेरी लास्ट आई रियली वांट दैट हम यहाँ पे दोबारा आएँ कभी. अगली बार हम सर से एक अपलॉज लेने के लिए आएंगे हम सब. एंड आई रियली वांट दैट वी ऑल जॉइन आवर हैंड्स टुगेदर इन आवर सक्सेसेस. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी जन्म में इसी जीवन में क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, इसी जन्म में इसी जीवन में क्लेश जहाँ है फूल खिलेगा, हमको तुमको त्राण मिलेगा, फूलों की खेती करने को एक दिन पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, एक दिन पूरा हिंदुस्तान मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑर्डिनेशन. थैंक यू वेरी मच. I hope I am audible at the last. So, sirs, Gandhians. So, good evening, everybody. Today I stand before you all with mix of emotions, excitement for the journey ahead.
gratitude for the experience I gained here, and sadness as we all are having farewell to this coaching, to this golden part of our life. सर के लास्टली कहते कहते कब लास्ट क्लास आ गई पता ही नहीं चला ना. वेरी नोट मैन, हो जाएगा, मगअप कर लेना. लास्ट पॉइंट क्या था? अरे समझ में आया ना? आया ना? Isn't it? गुड और बैड नहीं देखना है. ये सारी बातें, ये सारी शब्द कैसे हमारे जीवन का पार्ट सा बन गए पता ही नहीं चला. कोचिंग के टाइम से आधा घंटा पहले आ जाना, बैग रख के सीट रोकना, अपनी नहीं दोस्त की. और कभी लेट हो जाए तो भागते भागते दौड़ दौड़ के आना. ये सभी चीज़ें हम सब ने कहीं ना कहीं इन 6 महीनों में हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस करी है. और वास्तव में 6 महीने का समय कम नहीं होता नई यादें बनाने को, दोस्त बनाने को, कनेक्शन बनाने को, और हाँ, कॉन्सेप्ट सीखने को भी यही करने आए थे. तो and for this whole duration, sir has been a great teacher, and not only just a teacher, a mentor, a guide, and a source of inspiration. Sir has played all these roles in every lecture, every interaction, every moment in the class. Sir's way to teach concepts is really great, which reflects sir's hard work, dedication, and continuity and connectivity towards his work. Sir के daily life example कब चीज़ें समझा जाते पता भी नहीं पड़ता. और सर के ड्रेसिंग सेंस के लिए तो मैं अलग से स्पीच सेशन चाहता हूँ. एंड नॉट ओनली जस्ट सर, द होल स्टाफ हैज़ बीन वेरी कोऑपरेटिव सिंस द क्लासेस स्टार्टेड. चाहे अब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो 1.5 महीने तक मैं घर था हॉस्पिटलाइज होने की वजह से. सुनील सर ने क्लासेस टाइम टू टाइम अवेलेबल कराई. चाहे हमारा ऐसे ही कब कम हो ज़्यादा होता हमें पता नहीं पड़ता. ये कुछ छोटी चीज़ें, माइक का चलना बंद होना, तो ये कुछ छोटी चीज़ें जो हम नोटिस नहीं करते पर मैटर करती है. और विद दिस मैं अपनी स्पीच को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा. तो सर के लिए कुछ, अरे अभी बाकी है, इतना भी छोटा नहीं करना चाहूँगा. तो विद अ वेरी हैप्पी नोट आई वांट टू एंड माय स्पीच विद सम लाइंस व्हिच आई हैव रिटन. कुछ पंक्तियाँ जो मैंने खुद ने लिखी है, तो जो मैं सर को डेडिकेट करना चाहूँगा. ये लाइंस कुछ यूँ है कि गुरुवर तेरे चरणों में मैं शत शत शीश नवाता हूँ. गुरुवर तेरे चरणों में मैं शत शत शीश नवाता हूँ. तेरे ज्ञान के सागर में मैं क्षण क्षण डूबा जाता हूँ. तेरी दिखाई राह का तो कण कण भी मोती है. तुझसे जिंदा संस्कृति और संस्कारों की ज्योति है. थैंक यू सो मच. अति सुंदर, वाह क्या परफॉर्मेंस थी, वाह. Now it's time to move on to our next performance of the evening. Now I would like to call Sameer on stage. A huge round of applause for him. Hello, my name is Ahmed Sameer and I belong to Jamtara district in Jharkhand, a small district. I know most of you know. And I would like to thank you, sir, for being such a wonderful teacher, such a wonderful mentor. Sir, मैं सोच रहा था कि आपके बारे में क्या बोलूँ. काफ़ी लोगों ने काफ़ी चीज़ें बोली है आपके बारे में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 शब्द कहूँ. लेकिन मैं सोशलॉजिकल, आपने सर थिंकर्स के बारे में पढ़ाया, तो सोचा कि अगर थिंकर्स आपके बारे में बोलते तो क्या बोलते. इस बारे में मैंने कुछ लिखा है सर. तो सबसे पहले मैं कार्ल मार्क्स से पूछा, कार्ल मार्क्स ने क्या बोला मैं आपको बताता हूँ. कार्ल मार्क्स ने मुझे ये बोला, इफ़ यू अटेंड दिस क्लास रेगुलरली यू विल नेवर फील एलिनेशन इन सोशियोलॉजी एंड थ्रू द यूज ऑफ दिस base structure knowledge you can shape your super structure as you know like family. उसके बाद मैं इमाइल दरखिन के पास गया, जिसे मैं ईडी भी कहता हूँ, इमाइल दरखिन. तो आप सुनिएगा इमाइल दरखिन ने क्या बोला. तो इमाइल दरखिन सर बोले कि दिस क्लास हैज फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज इन ऑर्डर टू योर यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी. उसके बाद मैं मैक्स वेबर के पास गया. आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो मैक्स वेबर क्या थे, कितना हम लोगों को सताया मैक्स वेबर ने. इनफैक्ट ब्यूरोक्रेसी भी उन्होंने ही दी है, तो हम सभी को पता है. तो मैं इनके पास गया तो इन्होंने बोला कि यू विल गेट लीगल रैशनल ओरिएंटेशन इन योर माइंड एंड योर जर्नी ऑल्सो. एंड द फोर्थ वन इज RK यानी कि रॉबर्ट मर्टन साहब कहते हैं, दिस क्लास हैज मैनिफेस्ट एज वेल एज लेटेंट फंक्शन. The manifest function is that you will get sociological wisdom, and latent function is that your writing skill will improve. Definitely, सर ने इतना हमें लिखाया ना, 3-3 घंटे 2-2 घंटे,
हमारी हाथें तो काँप जाती थी पहले पहले, लेकिन अब आदत ऐसा हो गया कि मैं 4 घंटे भी लिख सकता हूँ, मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आने लगा है। एंड लास्ट आपके मीट साहब हैं, तो उन्होंने क्या बोला आप सुनिएगा। इफ़ यू अटेंड दिस क्लास यू कैन डेवलप योर सेल्फ एंड आइडेंटिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी जर्नी ऑल्सो। सारे थिंगर्स को मैं रिवाइज करके ही जाऊँगा आज। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों नहीं जा रहा है ये। गाइस तालियां बजाओ, शर्मा क्या रहे हो? हाँ, उसी के बारे में बात करनी है अब तो लास्ट में टालकर पार्सन, दिस क्लास विल इंक्रीज योर एडेप्टेशनल कैपेसिटी एज यू नो टालकर पार्सन सेड। थैंक यू फॉर दिस लवली स्पीच। शुक्र है खत्म हो गई। नाउ आई वुड लाइक टू से फ्यू थिंग्स अबाउट आवर ऑनरेबल सर। शुक्र मनाओ गाइस कि ये जीएस नहीं पढ़ाते, वरना राजेंद्र नगर की सभी कोचिंग्स की दुकानें बंद हो जाती। क्योंकि जब सर नोट्स बनाते हैं तो पूरा राजेंद्र नगर उसे पढ़ता है। जब सर ऐसे लिखते हैं तो वो मैगजीन में छप जाती है। और जब सर गाइडेंस देते हैं तो स्टूडेंट्स ब्यूरोक्रेट्स बन जाते हैं गाइस। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर नेक्स्ट परफॉर्मर ऑफ द इवनिंग, सुमित। Good evening, sir. Good evening, everyone present here. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to you, sir, who did not only limit yourself to the core content, rather went beyond to guide and counsel the students. Sir, you are a perfect reflection of humility, perseverance, and these are the guiding factor which you have reflected to the students. You had been always available for all the students, be it in my case or any other students present out here. Sir को आप कभी भी अप्रोच करो, सर हमेशा ही अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स और कुछ भी हो। द लेवल ऑफ ऑडेसिटी द डिफरेंट फैकल्टी रिफ्लेक्ट इन करोल बाग, वो सर में सबड्यू है। वो जिस तरीके से आपसे इंटरेक्ट करते हैं, आपकी बातें रखते हैं सर, दैट हैज़ रिफ्लेक्ट द डीपेस्ट बॉटम ऑफ योर हार्ट, एंड इट इज़ समथिंग दैट वी रियली loved in you. Sir, we as your students, we try our best to get the result as we strive for excellence in the future endeavors. We will carry with us the invaluable lessons and wisdom you have imparted that will serve as a guiding light throughout our life. Sir, we appreciate your role as more than just a faculty. You had been a philosopher and guide for us. Thank you, sir. Thank you, Sumit, for this lovely speech. अब मैं बुलाने जा रहा हूँ एक ऐसा इंसान, प्लीज़ वेलकम एक ऐसा इंसान जो है डेटा और फैक्ट्स की दुकान, गोरखपुर की आन बान और शान, हमारे और सर के सबसे प्यारे चतुर्वेदी महान। तो प्लीज़ वेलकम चतुर्वेदी जी। वेट चतुर्वेदी जी, वेट, इतना जल्दी में क्यों हो? गाइस ये काल्पनिक इंट्रोडक्शन है, इसका चतुर्वेदी जी से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ मनोरंजन के लिए था। नाउ वेलकम चतुर्वेदी जी ऑन स्टेज। Hello everyone, good evening sir, good evening everyone. My name is Adityanath Chaturvedi. I have graduated from the Madan Mohan Malviya University of Technology, Gorakhpur, Uttar Pradesh. स्लो इतनी जल्दी नहीं बोलना चतुर्वेदी जी। कल पनवेल नहीं निकलना हमें। मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो मुझे तो मतलब आईएएस में पहले मैं आना नहीं सोचा। मैंने आईईएस के लिए मैंने सोचा कि पहले वही किया जाएगा। मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे क्वालिफाई किया और एक कंपनी में मैं प्लेस था, प्रिज्म सीमेंट कंपनी हो सकता है आप लोग जानते हो। तो उसके बाद से वहाँ पे जॉब प्रोफाइल अच्छी नहीं थी, तो मैंने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया। यहाँ पे शहर की चकाचौंध देखकर हर तक पहली बार तो मैंने मेट्रो देखा और लगा कि मतलब हाँ यहाँ पर मतलब पहले गोरखपुर में था, ये सब चीज़ें थी नहीं, यहाँ पर आया तो सब चीज़ें मैंने देखा। हर जगह जाओ जहाँ किताब ही किताब, दुकान ही दुकान, कपड़े ही कपड़े। मैं कहा जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जहाँ जाओ 4 लोग कागज़ थमा देते, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डेमो कर लो, कोचिंग तो अच्छा है। अब आपकी तो उस केस में मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा अपने ऊपर देखना पड़ेगा कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, और ऑप्शनल के लिए मैंने विकास सर की क्लास में आया था, वहीं पर मैं बैठा था। और उसके बाद से सर बोले, जब सर ने कहा कि हेलो जी कैसे हैं आप सब, तो मुझे लगा कि हाँ ये लगता है सही कोचिंग है। और मैं सर के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ जो इस प्रकार है। Sir, a teacher like you is hard to find. We consider ourselves lucky to have such a great teacher in our lives. सर को एक बार फिर से हृदय की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और
मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दर्किम, ये लोग तो सोशल साइंटिस्ट हैं ही। सर भी एक सोशल साइंटिस्ट हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी लोगों की आत्माएं समय समय पर आती रहती हैं और वो लोग प्रेरणा देती हैं, उसके अनुसार सर हम लोगों को गाइड करते रहते हैं। वाह चतुर्वेदी जी वाह। वैसे मैं लिख के भी आपके लिए यही लाया था, वाह चतुर्वेदी जी वाह। और आपकी स्पीच भी ऐसी ही थी। मेरी राय आपके बारे में गलत थी, आप सच में डेटा और फैक्ट्स की दुकान ही है। आलोक, कब से हम दोनों ही बोले जा रहे हैं यार। हाँ यार, मुझे भी लगता है यार। तो क्यों ना हम अपने साथियों को भी शामिल करें। हाँ, क्यों नहीं। गाइस, आपने सपोर्ट करना है हाँ बोल के, अभी नहीं, जब बोलेंगे। तो क्या आप सभी को पढ़ने का शौक है? हाँ, हमारे साथ सोशियोलॉजी पढ़ लो। आप सभी को लिखने का शौक है? हमारे साथ सोशियोलॉजी के टेस्ट पेपर्स लिख लो। आप सभी को देखने का शौक है? हमारे साथ सोशियोलॉजी के ऑनलाइन लेक्चर्स देख लो गाइस। आप सभी को समझने का शौक है? विकास सर से बेहतर नहीं मिलेंगे, ये समझ लो गाइस। तालियां तालियां तालियां। कोशिश। Good evening, sir, and good evening, everyone. I am highly honored to deliver this farewell speech, and हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं to bid farewell to our exceptional teacher, our mentor, our supervisor, the only Vikas Ranjan sir. Sir, it wasn't until preparing this speech that I really realized that how the time flies. So, in 6 महीनों में, the time you have spent imparting knowledge and skills with us, the future bureaucrats, it was really admirable, and your utmost commitment. And although sir, मैं student हूँ from commerce and management background, so I was just thinking that how would I cope up with this subject, sociology. So one day I was strolling around my university campus in Delhi University. So one of my friends from Delhi School of Economics, he's from sociology department. He asked me that why you are worried. I told him that I was, sir, worried because of my past records of public administration. And now I was planning to opt for sociology. So he told me that if you want to go for sociology, then immediately rush to Triumph IAS at Vikas Ranjan sir. He is the god for sociology. And sir, जब मैं यहाँ आया तो बाहर सर मुझे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर मुझे प्रचारक मिले जो अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बता रहे थे। तो मैंने उनसे भी पूछा कि भैया बताओ यहाँ पे सबसे अच्छे कौन है सोशियोलॉजी के लिए। तो उन्होंने बोला कि सोशियोलॉजी पढ़ना है। बोला यस सर। तो उन्होंने बोला कि विकास रंजन सर को जानते हो? मैंने बोला कि हाँ मैंने सुना है। कहता उनके पास चले जाओ। सर मुझे ये चीज़ देखकर बड़े आश्चर्य हुआ कि वो अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम ना लेकर वो आपका नाम ले रहे थे। तो सर इससे दिस शोज़, मैंने तो पहले ही कहा था दुकानें बंद हो जाएगी। यस सर। तो सर दिस शोज़ दैट यू आर ए ब्रांड इन योर सेल्फ। बाकी सर मेरे यहाँ बहुत से मित्र बंधु भी बने जो कि भारतवर्ष के अलग अलग ज़िलों से अलग अलग राज्यों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। और सर लगभग मैंने यहाँ हर एक विद्यार्थी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा है, जिसको मैंने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन के उद्देश्य में उतारने की कोशिश भी करी है। और यहाँ हम सबका संकल्प एक है और हम सब जिस पथ पर मिलकर चल रहे हैं वो संघर्ष से परिपूर्ण है। तो लेकिन सर यही है कि अगर हम ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि हमें हमारा नाम यूपीएससी के लिस्ट में चाहिए तो फिर सर हम वो चीज़ कर सकते हैं। और अगर सर सब कुछ सही रहा, अगर सारे बच्चे सही से पढ़े हैं तो 1 से 2 वर्ष के भीतर में हम सब वापस फिर से लबासना में मिल सकते हैं। और सर जाते जाते मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि आपके इन जितने भी सफल विद्यार्थी जिनकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है, तो सर यहाँ पे इन दीवारों पे हमारे भी विजेता का परचम सर लहराएगा और आपकी इन दीवारों पे हमारी भी फ़ोटो लगेगी जिससे आपकी दीवारें कम पड़ जाएंगी। और सर थैंक यू। और बिल्कुल जी सर। और सर आपका भी नाम सोशियोलॉजी की किताबों में दर्ज होगा, जहाँ पे आगे आने वाले बच्चे सिर्फ योगेंद्र सिंह साहब और AR देसाई साहब के बारे में ना पढ़ेंगे बल्कि उनको एक नया नाम भी पढ़ने को मिलेगा, एज दी एमिनेंट इंडियन मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट विकास रंजन सर। तालियां 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 गाइस, तालियां। थैंक यू। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। A very warm good evening, sir, and my dear friends. I am Soumya Bhama and a lucky student who joined sir's class. Today I am going to express
माई एक्सपीरियंस इन फ्यू वर्ड्स, जो मैंने अपने इस UPSC जर्नी के दौरान सर के साथ एक्सपीरियंस किया है। Few months back, when I was wondering what optional should I take, will it be a right decision? Should I take a decision only by looking at syllabus? Will I be forced to join it as aspirants at the last moment do? Now I understand why teachers are called alternative to parents. Teaching is the profession that creates all other profession, and we are grateful that you chose to be a teacher. And we learn under your umbrella of expertise, sir. हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हज़ारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। एक आप जैसा शिक्षक अकेला ही काफ़ी है सर, हज़ारों बच्चों को सोशियोलॉजी पढ़ाने के लिए। Sir, you taught us Karl Marx के mode of production, Emile Taksim के division of labor, Weberian perspective of bureaucracy, Parsons social system, Endology by Gure. Thank you so much, sir, for making us sociologist 2.0. गिरते हैं जब हम तो उठाते हैं आप, जीवन की राह दिखाते हैं आप, अंधेरे यहाँ पर बनकर दीपक जीवन को रोशन करते हैं आप। कभी नन्ही आँखों में नमी जो होती तो अच्छे दोस्त बनकर हमें हंसाते हैं आप। झटकती है दुनिया हाथ कभी जब तो झटपट से हाथ बढ़ाते हैं आप। सर, you work tirelessly in shaping our mind and leads us on a good path. You are a constant source of motivation for everyone. You taught us the importance of valuing and respecting others' knowledge and time by being punctual. You taught us what actually counts. You always taught us by involving in each decision and telling us in a practical world so that we don't forget our way in the real world. Sir, whenever we are in dilemma, तब आपका यूँ कहना हो जाएगा, बस अभी रिवीजन पे फोकस करेंगे, isn't it? बाकी अदर रंजन्स के लिए छोड़ देंगे। आपका यूँ कहना गुड और बैड में नहीं जाएंगे, बड़ा याद आएगा। फिक्र करूं या जिक्र करूं, आपके बिना ये सफ़र कैसे पूरा करूं। आपके साथ ये जर्नी बहुत सुहावनी थी सर, आपके बाद ये जर्नी बहुत सताएगी। A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. Sir, time goes by quickly when you are having a good time. And sir, we had the best time. And for time well spent, sometimes departure are celebrated more than arrivals. Shukriya sir. Thank you, Soumya. Just a second. Okay. I would also like to say thanks to my all friends, those who made my journey very beautiful, very interesting and sweeter. आओ सुनाओ तुम्हें बीते पलों की कुछ खट्टी कुछ मीठी दास्ता, कुछ मेरी कुछ आपकी बात करते हैं, चलो कुछ बीते लम्हे याद करते हैं। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्ता में बदल रहा, आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। क्लास और चाय की टपरी वाली कहानी होगी ख़त्म अब, क्लास और चाय की टपरी वाली कहानी होगी ख़त्म अब अलग होगी स्ट्रैटेजी और अलग होंगे रास्ते। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। मेरे दोस्तों, ठीक से देख लो कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई दिल रूठा ना हो। भूल कर सब रंजिशें गले मिल लो फिर से मिलने का वादा कर लो,
क्योंकि जा रहा है वक्त, वो लौट के दोबारा आने से रहा। मेरे यारों, ये साथ का पल अब एक दास्तां में बदल रहा। आ गया वो मोड़ जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। थैंक यू एंड फाइनली स्पीच एंड। थैंक यू सर। Good evening, sir. So, I would like to thank you so much, sir, because हम सोशोलॉजी बैचलर्स और मास्टर्स दोनों सर सोशोलॉजी में हुआ, बट आई रिमेंबर द फर्स्ट डे आपको ये बोले थे सर, लेकिन कुछ उतना पता था लेकिन एनालाइज करने आता नहीं था हमको सर। तो आपसे जब पूरा हुआ तो सर अब सोशोलॉजी का जो अलग पर्सपेक्टिव है वो हम मतलब जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पता चल जाता है सर। तो हाय दोस्तों, सर को नमस्कार। दोस्तों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एक कविता है जो मुझे अच्छी लगती है, आपको उसका मतलब समझने के लिए कोशिश करूँगा। ये कविता वैसे मैं नागपुर का हूँ। तुम्हें बोलना है कुछ? तुम्हें 8-10 लाइन है, समझाने की कोशिश करूँगा आपको। एक स्टूडेंट है जो अपने सर के घर आता है, अंधेरा है, बहुत तूफान है और बारिश में भीगा हुआ है और परेशान भी है। वो बेल बजाता है और पहली लाइन, ओळखलं का सर मला पावसात आला कोणी। इसका मतलब ये है, सर आपने मुझे पहचाना क्या? बारिश में कोई एक लड़का आया है, कपड़े होते करदम ले ले केसावरती पानी। कपड़े उसके चिखल से भरे हुए हैं, सर से पानी बह रहा है। क्षणभर बसला नंतर हसला, बोलला वरती पाहून। थोड़ा सा बैठा, थोड़ा सा सर के तरफ देख के हंसा और सर के तरफ देख के बोलता है, क्या नाम है? कौन आ रहा है? इसके बाद कौन आ रहा है? गंगा माई पाहुनी आली, गेली घरट्यात राहून। गंगा नदी मेरे घर में मेहमान आई और मेरे घर में रह के गई। माहेर वाशिन पोरी सारखी चार भिंतीत नाचली। मैके में जैसे लड़की जाती है और जैसे नाचती है, झूमती है, वैसे मेरे घर में वो आई, सब कुछ तहस नहस की और चली गई। लेकिन खाली हाथ कैसे जाएगी? तो मोकड्या हाती जाईल कशी, बायको मात्र वाचली। वो खाली हाथ कैसे जाएगी? वो जो था नहीं था सब कुछ लेके गई, बर्तन, बेड, जो भी था, सिर्फ और सिर्फ मेरी धर्मपत्नी बच गई। भिंत खचली, चूल विजली, होते नवते नेले। सर दीवार गिर गई है, चूल्हा बुझ गया है, जो मेरे पास था नहीं था, मैंने जो कमाया वो सब कुछ ख़त्म हो गया है और लिटरली सब कुछ ख़त्म हो गया है। प्रसाद म्हणून पाण्यामध्ये पानी थोड़े ठेवले। उसने प्रसाद करके मेरे आँखों पे बस पानी रखा है, आंसू मेरे आँखों पे है, यही उसका प्रसाद दिया है उसने। कारभार नीला घेऊन संगे सर, आता लड़तो आहे। कारभार नीला यानी मेरी धर्मपत्नी, उसको मैं साथ लेके सर सब अभी लड़ रहा हूँ, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मनीष नाम है ना तुम्हारा? पड़की भिंत बांधतो आहे। इसका मतलब जो गिरी हुई दीवार है उसे मैं फिर से बांध रहा हूँ। चिखल गाड़ काटतो आहे, जो घर में चिखल है, मड है, जो खराब हुआ है सब निकाल रहा हूँ, सब साफ कर रहा हूँ। ये सब देख के और ये व्यथा सुनते हुए सर बोले कि लड़का बहुत परेशान है, सब व्यथा बता रहा है, तो उससे थोड़ी मदद की जाए। तो सर ने अपने पॉकेट के तरफ हाथ किया कुछ पैसे देने के लिए। वो देखते हुए वो लड़का बोला, खिशाकडे हाथ जाताच हसत हसत उठला। जैसे उसने देखा कि सर का जेब की तरफ जा रहा है, वो बोला कि नहीं नहीं सर। हंसते हंसते वो उठा और वो बोला सर से, पैसे नको सर, जरा एकटेपना वाटला। सर मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे अकेलापन थोड़ा सा लगा, थोड़ा हारा हुआ लगा, इसलिए मैं आप तक आया हूँ। मोडून पडला संसार तरी मोडला नहीं कना। मेरा संसार पूरा उद्ध्वस्त हो गया है, फिर भी मेरा कना अभी भी ताट है। कना यानी बैकबोन होता है। सर को बोला है, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कना, पाठीवरती हाथ ठेवून नुसते लड़ मना। आप सिर्फ पीठ पे हाथ रख के सिर्फ लड़ बोलिए सर, मैं ज़िंदगी की पूरी जंग जीत जाऊंगा।
ये आशय है। तो यही भाव विकास सर से है। जब जब ज़रूरत पड़ी सर के तरफ देखते हुए फिर से लगता है सर जिस तरीके से गाइड करते हैं, और जो भी उटपटांग सवाल होते हैं नॉनसेंस टाइप भी, लेकिन सर उसको कभी इंटरेस्टिमेट न करते हुए सब बताते हैं, हर तरीके से मदद करते हैं। तो उसके लिए सर मैं विनम्र प्रणाम करता हूँ। और आप ऐसे ही कहिए कि आप अपना पीठ पे हाथ रखिए, हम जीत जाएंगे। धन्यवाद। Good evening, sir, and my friends. As we bid adieu to this phase of our academic journey, it is imperative to reflect on the profound impact of sociological thought and how sir has been instrumental in guiding and making us understand the society's cultures and human interaction. From the teachings of Himayal Darkhim, we learn to appreciate the collective conscience that bind us together. While Max Weber encouraged us to examine the While Max Weber encouraged us to examine the complexities of rationalization and bureaucratization, sir, your guidance helped us to delve into the writings of Karl Marx, shedding lights on class struggles and dynamics of capitalism, and many more other such eminent sociologists who helped us to understand the social values and norms of the societies. As we move forward, we carry not only the knowledge you have imparted, but also the passion and enthusiasm with which you have instilled in us a love for sociology, which in my opinion, ये हमें किसी और आदर रंजन के क्लास में कभी नहीं मिल सकता. So thank you so much, sir, for your unwavering commitment and for being a mentor and guide in our academic pursuit. Thank you, sir. हेलो जी, कैसे आप सब? हेलो जी, ऑल गुड? सो व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट मैन? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझ में वेबर की आत्मा आई हुई है. डोंट टेक इट अदरवाइज गाइस, बस समझने के पर्पज से लो. यस ना जैन साहब? यस ना? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अरे भाई कुछ अदर रंजन के लिए भी छोड़ दो भाई, ये एमिनेंट सोशियोलॉजिस्ट है. इजंट इट? गुड एंड बैड में नहीं जाना हमें, बस समझने के पर्पज से करना है. क्यों तिवारी जी? गुड एंड बैड में नहीं जाना है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में मैनेज करेंगे तो हो जाएगा. हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा. हो जाएगा ना? गांधीयंस, जब तक आप यस नहीं बोलेंगे मैं पूछता रहूंगा. बोलो यार. मालिक का नमक खाया है, अब गोली खा. As lovely professional university says, the world is here. Where are you? Next line of thought. Open happiness, Coca-Cola. For happiness to have class. As Trump says, America for Americans. And Obama, make America great again. Bhai, what was the Osho Foundation? Refer to printed notes. शोभित भाई, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, पता नहीं यार सिलेबस में कहाँ से पूछ लिया. मुझे लगता है रात को ये सब पार्टी वार्टी करके फिर पेपर सेट किया है. मुझे तो ऐसा लगता है. समझ गए ना? अगर नहीं समझे तो याद कर लेंगे, लिख देंगे, ऊपर वाला समझ जाएगा कि आता है. बाकी मेरे साइकोलॉजी में नंबर ज़्यादा आए थे, बट उससे रोजी रोटी नहीं चलता है गाइस. उसके लिए सोशियोलॉजी पढ़ाना पड़ता है. थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू. ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस. जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या, कहा मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, जा आ मर गए भूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या. हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति तिवारी. सर, आपके लिए बस इतना कहना है कि अर्जुन अर्जुन था क्योंकि उसके पास कृष्ण थे. तो जब मैं इस शहर में आई थी, मैंने, आपको पता है मैं मैथ्स ऑप्शनल के लिए आई हुई थी, तो जब मैं सोशियोलॉजी के लिए आई तो आपका कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं देखा हुआ था. सिर्फ मुझे इतना पता था कि एक सर हैं, बस जाना है, कोई डेमो नहीं, कुछ नहीं, बस आ गई थी. लेकिन जब पहली बार आपसे मिला, आपने पढ़ाया, मतलब आप टीचर कैसे हैं ये तो सबको पता है, बट आप एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं
हमारे में जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट होता था, मतलब आज समझ में आता है कि वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुकुल इज सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के यहाँ आए, ना मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं। लेकिन जब मैं अपनी एक पर्सनल प्रॉब्लम लेके आई कि सर मुझे अर्जेंटली घर जाना पड़ेगा, और आपने जब मुझसे पूछा ट्रेन की टिकट कंफर्म हो गई, अगर नहीं हुई है तो PNR नंबर दो, मैं करा देता हूँ। उस टाइम पे फील हुआ कि एक्चुअली आप टीचर नहीं है, आप मेंटोर भी नहीं है, आप ना एक फैमिली बन गए। इस पहले सीट में बैठने के लिए 1 घंटा पहले आती थी मैं, और अगर मैं इस सीट पे नहीं बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था ना मैंने कुछ बहुत बड़ा मिस कर दिया, मतलब मुझे सोशोलॉजी समझ नहीं आई। आई स्टिल रिमेंबर मैं आपके पास आई कि सर पेपर 1 तो समझ नहीं आ रहा, पेपर 2 थोड़ा हो जा रहा है। आपने बोला यू विल राइट वाइस आंसर। आपने जिस तरीके से मोटिवेट किया है, आई डोंट थिंक कि कोई कर पाएगा, मतलब इस शहर में ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारा कोई है नहीं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉन्स्टेंट सपोर्ट। एंड वन मोर थिंग, हम भूख के पले बच्चे हैं, हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे। अब जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर ही जाएंगे। एंड आई चेरिश द मोमेंट आई क्रिएटेड विथ यू एंड माई बैचमेट्स, एंड लिटरली इट इज़ वेरी हार्ट ब्रेकिंग कि अब मुझे इस सीट में आने के लिए 1 घंटे पहले नहीं आना पड़ेगा। आई विल मिस यू सर एंड एवरीबडी, थैंक यू। जाओ 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 जाओ, नहीं नहीं बोलूँगा नहीं, अब आप आए। कहाँ है, निकालो ना। हेलो तो ऐसा है देखो मेरे दोस्तों ने कहा कि आखिरी दिन है, कुछ बोलना है तुम्हें भी, तुम्हारे बिना मज़ा नहीं आएगा। तो देखो मुझे तो कहानियाँ सुनाना आता है दोस्तों, ठीक है, तो मैं कुछ 1-2 कहानियाँ आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। एक बार एक गांव में एक गाड़ी आई, तो रात का समय था, अब उस गाड़ी के पीछे एक कुत्ता सो रहा था, तो वो देखा नई गाड़ी, वो गाड़ी के पीछे भागना स्टार्ट कर दिया। अब उसको देखे देखे एक नया कुत्ता, मतलब दूसरा कुत्ता था, वो भी उस गाड़ी के पीछे पीछे भागने लग गया। अब उसको देख के एक तीसरा भी भागा, अब एक चौथा भी उसके पीछे भागने लग गया। तो ऐसे 4 कुत्ते उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। तो चौथे वाले के दिमाग में आया कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ये लोग भाग क्यों रहे हैं इस गाड़ी के पीछे। तो वो भागते भागते तीसरे वाले के पास गया, उससे पूछता है तुम क्यों भाग रहे हो। तो वो कहता है पता नहीं, देखो ना सामने वाला भाग रहा है, उसको देख के मैं भी भाग रहा हूँ। तो वो सेकंड दूसरे वाले के पास गया, उससे पूछा, वो भी कहता है वो पहला वाला भागा तो उसको देख के मैं भी भागा। तब जब वो पहले वाले के पास गया तो वो पहला वाला से पूछता है कि तुम क्यों भाग रहे। तो वो कहता है यार गांव में नई नई गाड़ी आई है, नया नया टायर लगा है इसमें, अब इसके टायर पे अगर सुसु नहीं किया तो मज़ा क्या आएगा। तो कहने का मतलब, जब मैं यहाँ प्रिपरेशन करने आया था, मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी GS ओरिएंटेड नहीं था। जो लास्ट टाइम हिस्ट्री पॉलिटी वो सब सब्जेक्ट्स थे वो 10th में ही पढ़ा था। तो फिर मैंने यहाँ पे पता करना स्टार्ट किया कि कैसे करना है, क्या करना है। तो दोस्तों से पूछा, जो मिलते गए, और मैं घर पे अकेला था तो मैंने टेलीग्राम पे बहुत सारे ग्रुप्स मिले मुझे, तो मैं बहुत लोगों से मैंने कम्युनिकेट किया कि कैसे करना, क्या करना है। पर वही वो कुत्ते वाली हालत, मतलब एक तरह से कि किसी को पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस भागे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, जो मिल रहा है वो पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा सोशियोलॉजी मतलब ऑप्शनल सेलेक्ट करने की बारी आई, तो अब करना तो था तो तो अब इंजीनियरिंग में ये था, तो मैंने शॉर्ट डाउन करना स्टार्ट किया तो कि कौन सा ऑप्शनल ले, कौन सा ले। तो फाइनली ये हुआ कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में मुझे 2 एक चूज़ करने के लिए था कि दोनों में से कोई एक लेना है। तो सर आपने फर्स्ट क्लास में पूछा था कि सभी बच्चों से कि सोशियोलॉजी क्यों लिया। सर मैं पहली 2 क्लास एब्सेंट था और मैं चाहता था कि मैं रहूँ, क्योंकि मेरा रीज़न बहुत यूनिक था। क्योंकि मैंने बस ये मतलब जितने सारे टॉक देखे थे और ये थे, इससे मैंने एक एनालाइज़ किया कि बस एक किताब पढ़नी है नितिन सांगवान, उससे हो जाएगा सोशियोलॉजी। तो मेरा तो बस ये था कि एक नितिन सांगवान पढ़ लो और थोड़े से वो कर लो, उससे हो जाएगा। तो ये सोच के मैंने यहाँ पे किया। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया सोशियोलॉजी का। तो फिर मैंने बहुत सारे क्लासेस भी देखे, पर उसमें भी मतलब ज़्यादा समझ नहीं आया। फिर मैंने विकास रंजन सर की ओरिएंटेशन क्लास देखी यूट्यूब वाली, तो मुझे जेन्युइनली पहली बार ऐसा लगा कि इस पूरे डोमेन में जो समझाने या जो टीचर हैं उसमें पहली बार कि कोई जेन्युइन बता रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब ये कर लो वो कर लो हो जाएगा, एक जो जेन्युइन लगता है ना कि दिल से एक आवाज़ आती है कि नहीं यार ये सर हैं, ये सर बिल्कुल सही बता रहे हैं, और एक फ्रेंड गाइड की तरह मतलब पूरा वो कर रहे हैं, मतलब गाइड कर रहे हैं हम लोगों को। तो और सर ये जो लाइन है ना आपकी, ये मैंने आपके ओरिएंटेशन क्लास से उठाई है सर।
आपने जब ये कहा ना कि फिलॉसफी में साइकोलॉजी में ज़्यादा नंबर थे पर सोशियोलॉजी पढ़ा, तो वो मुझे लगा कि यार सर जब इतना मतलब ट्रू होकर के हमें बता रहे तो गाइड भी हमें बहुत ट्रू होकर के करेंगे। तो फिर यहाँ पे आए, हम लोगों ने क्लास ज्वाइन की, क्लासेस की, बहुत सारे मोमेंट्स बने, बहुत सारे दोस्त भी बने। आलोक नागर सॉरी, हमारे चतुर्वेदी जी, आदित्य जी, तिवारी जी एंड ऑल, बहुत मोमेंट भी बने। और सर मज़ा भी आया, सोशियोलॉजी भी समझ में आई, ठीक है। पर थोड़ा सा सर एक दिन को मजाक में, पर भरोसा तो उस दिन उठा सर जिस दिन पता चला आंध्रे बेटे लड़का है सर। जिस दिन आपने वो कहा ना कि आंध्रे बेटे और उसके बाद वो ही लिखवाया, तो सर हमारा रिएक्शन था है आंध्रे बेटी। तो यही सब है गाइस। तो अब हमारा एक्चुअली क्लास, और सर वो लास्ट दिन भी सर हमें तो लग रहा था कि भी और क्लास चलेगी, आपने अचानक से कहा तो ऐसा लगा कि अब कल से क्या करेंगे। कल से एक्चुअली मैं उत्तम नगर से आता हूँ तो बड़ी दूर से आना पड़ता है, तो अब कल से रूम पे ही रहना है, बैठना है, क्या करेंगे। यहाँ आते थे तो थोड़ा मन भी लगता था। और अब सर आप लोगों की बहुत याद आएगी और आपकी भी सर, ऐसे ही सर हम लोगों को गाइड करते रहिएगा। हाँ बुला लेता हूँ पर देखिए सर हमें गाइड करते हैं तो हमें उस गाइड को लेना भी है, पर गाइड को अब ऐसा नहीं बना देना है कि एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया। इसके ऊपर एक छोटी सी एक कहानी मैं लास्ट ख़त्म कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जो 3-4 मतलब लोग थे, उनको दीक्षा लेना था, सिद्धि लेनी थी, तो वो अब एक गुरु के पास गए तो कि कैसे कैसे हमें मतलब आगे दीक्षा लेना है या फिर हमें सिद्धि करनी है, तपस्या करनी है काइंड ऑफ। तो उनके गुरु ने उनको बताया कि देखो तुम्हें उस पहाड़ तक जाना है, खाली पैर जाना है और भूखे पेट जाना है। रास्ते में कोई बाधा अड़चन नहीं आनी चाहिए, और इन केस अगर रास्ते में कोई महिला या युवती दिख गई तो वो बहुत ध्यान भटकाती है, तो इस कारण से मतलब तुम लोग वहाँ पे हरिओम बोल के आगे बढ़ जाना। तो चारों निकल गए अभी तीर्थ यात्रा के लिए। चलते चलते कुछ दूर जाने के बाद एक कहता है हरिओम, तो अब बाकी 3 कहते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो कहने का मतलब कि सर हमें जो गाइड करते हैं तो ये नहीं कि यहाँ से सुने, यहाँ से निकले और बाहर गए तो फिर वो भूल गए, क्योंकि जो सर कहते हैं वो अगर जीवन में फॉलो किया तो मैं देखो ऐसा वो दिलासा नहीं, पर सक्सेस तो मिलना ना मिलना वो किस्मत पे भी है और बहुत सारी फैक्टर्स पे डिपेंड भी करता है। लेकिन हाँ, जीवन में हम एक बहुत अच्छे इंसान भी बन जाते हैं, बन पाएंगे। और यहाँ आके सर मैं एक्चुअली मेरे बहुत सारे थॉट भी आपके विचारों से चेंज हुए। मैं यहाँ बैठा था एक दिन तो मैंने आपसे कहा कि सर वो फीमेल सोशियोलॉजिस्ट वाली बात, तो कि सर वो वरना कहेंगे कि वैल्यू नहीं देते, तो आपने जो वो बात कही कि आप देते हो मतलब फीमेल को, आप कुछ नहीं देते, वो उनका अधिकार है। तो ये सब कुछ बातें सर वो हम लोगों को वो छोटी लगती पर वो जीवन में उतर जाती है सर। तो गाइज इन्हीं सब बातों से मैं आप लोगों से विदा लूँगा। धन्यवाद। And my fellow aspirants, it's been a pleasure for me to speak here at Farewell. Sir, you have started our batch with the very first warming session of Introduction to Sociology and some Gyan Ki Baatein. I remember some of those. Be and behave like a beginner. Learning should be qualitative, not be quantitative. As a student of sociology, one must be book smart as well as street smart. And that's how our journey started with great enthusiasm. Sir, you have not only teach us thinker's view, rather made us capable enough to understand its relevance in understanding rapidly changing modern society. From Durkheim's solidarity to Weber's rationality, sociology unveils the human reality. And I also experience the same. Sir, you are always saying that good or bad में नहीं जाने का, just know the problem or things, understand the reason behind it and its consequences on society at large. In the process of aging, while observing society, there were many questions came to my mind. But after learning sociology, now I have diverse point of views about different sectors of society. Dear students, what we had learned from Vikas Ranjan sir, apart from academics, which will also helpful in our preparation and after getting into civil services. First thing is that always be in active mode with smiley face and never be in stress or anger. Positive orientation towards every problem. Second thing is raising your helping hands to needy people. And last but not least, giving attention to last man, that is Gandhians. Sir, your teaching will inspire us to work efficiently for the welfare of society, particularly for subaltern sections.
I would also like to thank all non-teaching staff for their seamless efforts to make successfully complete this batch. Finally, sir, I want to assure that there will I want to assure you on behalf of my class that we will ensure maximum result from our batch. And friends, I think that will be the best gift for Vikas Ranjan sir. Thank you everyone. गुड इवनिंग एवरीवन। सर ने मुझे हमेशा देखा है सीट पे बैठते हुए, पर सर से मैं कभी भी फेस टू फेस बात नहीं किया। पर जब सर पढ़ाते थे तो उनका आइज कांटेक्ट जो होता है पढ़ाते मेरे फेस पे जाता था, और मुझे लगता था कि सर से मैं जाके बात करूं, या फिर वो मुझसे सोचते होंगे कि क्यों नहीं पूछती है। तो आज तो बहुत कोई यहाँ पे पूछा था, बहुत कोई पेन, कॉपी, आईपैड, मोबाइल में सर के लिए कुछ ना कुछ लिख के आई हूँ, पर मैं खाली हाथ आई हूँ, क्योंकि मैं सोची कि अगर सर की नहीं आपके पास है वो एक अलग है। मैं सोची अगर सर के लिए लिखना बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगा, कोई कॉपी कलम भी काम ना आएगा। जैसे आसू भैया ने कहा कि आपके लिए किताब छपेगा, तो मैं कहना चाहती हूँ सर, अगर मैं लिखना बैठती हूँ तो सच में किताब तो छप ही जाता है आज। लेकिन सर कभी कभी जैसे होता है ना कि हम बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं कि सर अब नहीं हो रहा है, सर अब थक गए, अब बहुत जर्नी लंबी हो गई, क्योंकि आपने कहा ना कि वोमेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स होता है, मैरिज का, घर का, हर चीज़ का फोर्स होता है। तो हमारे ऊपर भी एक फोर्स था कि अगर अब 2-3 साल में नहीं होगा तो मैरिज करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो कभी कभी आज सोचते थे आज सर से जाके बोलूँगी सर अब नहीं हो रहा है मुझसे। सर आते थे, एंट्री करते थे, पहले बोलते थे हेलो जी कैसे हो, मैं धीरे से बोलती थी सर मैं अच्छी नहीं हूँ मैं बोलती थी मैं अच्छी नहीं हूँ। फिर सोचती थी आज छुट्टी होगा सर से जाके पूछूंगी सर मेरे को ये प्रॉब्लम है। पर ऐसा होता था ना, सर पढ़ाना स्टार्ट करते थे और सर का पढ़ाने का स्टाइल इतना अलग था कि जो मुझे मेरे माइंड में होता था ना, जब आप मुझे खुद में खुद मिल जाता था। अब मैं छुट्टी टाइम सोचती थी अब क्यों जाऊं जब आप तो सर क्लास में ही दे दिए हैं। तो एक पेरेंट्स जैसे होते हैं ना कि जैसे कुछ होता है अंदर से गट फीलिंग आती है कि आज अच्छा नहीं चल रहा है, सही नहीं चल रहा, और पेरेंट्स तुरंत कॉल कर देते हैं हाँ बच्चा कैसे। तो सर आते ही कहते थे हेलो जी कैसे हैं, और हमेशा सर कहते थे हो जाएगा। तो सर कहना चाहते हैं आज ये स्टेज है, और जब हमारा जर्नी कंप्लीट होगा 2 साल 3 साल के बाद हम आके बोलेंगे सर हो गया हमारा, और फिर यहीं पे खड़े रहेंगे हम, याद रखिएगा हमें। थैंक यू सो मच सर। एक और बताना चाहती हूँ, ऐसा इंस्टीट्यूट मैंने पहले भी ऐसा दिल्ली में देखा है। मैंने 1 हफ्ता इंस्टीट्यूट नहीं आई थी और मुझे कॉल गया था घर कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैं बहुत नर्वस थी कि कॉल क्यों आ गया, तो घर से कहा गया कॉल क्यों आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। मेरे फादर ने उठाया और कहा क्लास नहीं गई हो ना, मतलब आपके पास से कैसे जाऊं, तो उन्होंने कहा तबीयत खराब है। तो उन्होंने सोचा अब सही है, तुम सही जगह गई हो, कि ऐसा इंस्टीट्यूट है कि आज तक मैं दृष्टि में पढ़ी हूँ, कभी कोई मैसेज नहीं किया, मैं 1 महीना से स्कूल नहीं जा रही, कुछ नहीं आया, और मैं 1 हफ्ता के लिए घर गई और पेरेंट्स को कॉल चला गया। तो मेरे पापा बोल रहे हैं अब तुम सही जगह हो, अगर तुम क्लास नहीं गई तो फादर फिगर जो होते हैं वो हमारे सर है। अगर सर कहते हैं ना एनी टाइम अवेलेबल होंगे हमारे पास, तो सच में सर हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल होंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो सर के पास आइएगा, और सर हमें सच में दिल से बहुत अच्छा आपने गाइड किया। थैंक यू सो मच, और हम उम्मीद करते हैं आगे भी हमें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। Hello, good evening sir. Thank you sir for being a wonderful mentor. Thank you so much. Like actually मैंने वीडियो देखा था सर का सबसे पहले, that actually I'm from botany background. So when I choose sociology, so मैंने सोचा कि कौन सा लूँ, कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूँ मैं। Then I started like YouTube searching the videos, so I saw so एक्चुअली द प्लेस वेयर आई एम फ्रॉम बंगाल, आई एम बंगाली, सो वहाँ पे उतना ज़्यादा यूपीएससी का उतना चर्चा है नहीं। तो वही तो व्हेन आई सर्च्ड ऑन गूगल, सो इन यूट्यूब एंड आई सॉ सर, सो आई वाज वेरी ईगर टू मीट कि आई वांट टू मीट सर, लाइक आई वांट टू मीट इन सर लाइक इन फेस टू फेस। बट आई रिमेंबर इन G20 था, लाइक वो पोस्टपोन हो गया था 3 दिन के लिए। इट वाज लाइक क्लास 8 सितंबर तक मैं कंडक्ट होता, बट वो नहीं हुआ।
वो 11th पे हुआ था। एंड सर व्हेन सर केम लाइक हेलो जी कैसे हो, दिस लाइक लाइन सर इट्स ग्लो लाइक द आंसर्स का ग्लो फेस पे, इट मोटिवेट्स लाइक आप हमेशा सुबह से आप पढ़ाते हो फिर भी इतना ग्लो कैसा, लाइक हाउ, लाइक मेरे पे तो इतना ग्लो नहीं आता कभी भी, लाइक किसी और पे भी, बट सर का हमेशा ये ग्लो, प्रकृति का स्पर्श। या आई एग्री ऑन दैट। एंड लाइक और एक बात जो प्रेरणा, लाइक माई फ्रेंड सेड दैट मुझे भी कुछ प्रॉब्लम होता था कि आई वांट टू डिस्कस कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है या वो है, बट पूछने से पहले ही सर के पास सॉल्यूशन था। लाइक सर यहाँ पे आते सर बोलते थे कि ये ऐसा प्रॉब्लम ऐसा हुआ है, लाइक आई गेट द सोल्यूशन। फिर अब जाती नहीं थी कभी सर के पास। माई हिंदी इज लिटिल बिट लाइक सो लाइक देयर इज अ पोएम मैंने सुना है वो कही, डियर सर दिल से शुक्रिया हमारी भविष्य सजाने के लिए, आपकी डांट कड़वी तो लगती है लेकिन ज़रूरी है, गाइस साइलेंस, हमें गलती से बचाने के लिए, हमें झेलना बिल्कुल आसान नहीं, फिर भी आप अकेले कैसे झेल लेते हो, लाइफ की टेंशन्स, वर्कलोड, हमारी शरारतें एक साथ कैसे संभाल लेते हो। एक पॉइंट पे सर आपको गुस्सा तो आता होगा पर फिर भी प्यार से समझाते हो। नहीं गुस्सा नहीं आता सर को, गुस्सा नहीं देखा, कभी नहीं देखा, गुस्सा नहीं देखा मैंने, गुस्सा तो आता होगा बट सर नहीं करते, नहीं आता ही नहीं, वो नहीं। हाँ लेट मी कंप्लीट ब्रो। नहीं कंप्लीट करो, बट ये सच्चाई है। पेरेंट्स के बाद एक आप ही हो सेल्फलेस, जो बिन मांगे सब कर जाते हो। कभी गिर जाए हम तो आप हो उठाने के लिए, कभी गिर जाए हम तो आप हो उठाने के लिए, जब खुद से भरोसा हटने लगता है तो आप होते हो हमें बचाने के लिए। सच कहूँ तो आपसे अच्छा मेंटर हमें कभी नहीं मिला, हमारी वो बातें भी सुनी जो कोई सुनने वाला नहीं था। ये आप ही का तो सपोर्ट है जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं। आपने ये खुला आसमान दिया जिसमें पंख फैला के हम आज उड़ पा रहे हैं। आपने हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार किया, आगे आने वाली हर परेशानी के लिए तैयार किया। क्लास में अपने किस्से सुनाए, खूब एंटरटेनमेंट कराया है, जब पढ़ाई का मन ना होता तो इधर उधर की बातें करवाया है। थैंक यू सर। इस वन शायरी, जिंदगी गिरवी रख कर भी, जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, गुरु का भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो उंगली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहा है वो गुरु नहीं तो सिखाया था। वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां। सो गाइस, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फेयरवेल कम्स टू एन एंड। ठीक है, क्या कर रहे हो? Thank you so much all of you. Without your support, this farewell is not possible. Special thanks to Rupika ma'am, Rakhi ma'am, Sunil sir, Raj bhai, and rest of the family of Triumph IAS. Guys, a big round of applause for all of them. And sir, on behalf of everyone, I would like to say a big thank you to you, sir. Without you, this journey is not possible, sir. तो दो लाइनें हैं कि सफ़र बहुत छोटा रहा यहाँ, सफ़र बहुत छोटा रहा यहाँ, मगर ट्रायम्फ IAS यादगार हो गया हमेशा के लिए। It was lovely hosting you guys. दुनिया गोल है, किसी ना किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। Okay, thank you guys.